شہربانی کی ترتیب کی کتاب سے ہم شروع کریں گے۔ آج کی عبادت کا ہم آغاز کرتے ہیں شہربانی کی ترتیب کی کتاب صفحہ نمبر 1 پہلے صفحے سے شروع کریں گے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکم پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ایسٹر کی عبادت کے بعد اس پہلے اتوار میں ہم سب اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی ہم دو تعریف کریں، اس کی ستائش کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکے۔ تھوڑی دیر ہم شکر کریں خدا کا، خدا نے ہماری زندگی میں گزرے وقت میں لینٹ سیزن بخشا، خداوند یسوع مسیح کے صلیبی سفر میں ہمیں ہم سفر بنایا، پھر ہم نے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید منائی۔ آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پھر خدا نے ہم سب کو اس صحت و تندرستی میں اکٹھا کیا ہے تاکہ ہم اس کی ستائش کریں اور اپنی مناجاتیں، اپنی درخواستیں خداوند کے حضور گزرانے اور اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے اس سے روحانی اور جسمانی برکتیں پائیں۔ سو ہم سب مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے، نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو، اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں۔ زبور نمبر 91 گائیں۔ یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان،
खुदावंद दे विच रहिंदी है और तेरा है मकान। ये ज़बूर हम बड़ी तसल्ली के साथ गाएंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा कि एक आयत पहले मुझसे सुन लें। कुछ लोग इसमें गलती कर जाते हैं। बड़ी सीधी सी राग है और बड़े सालों से हम गाते आ रहे हैं, लेकिन जब सेकंड हिस्सा हम गाते हैं तो इसमें हम थोड़ी सी गलती करते हैं, इसलिए ज़रा गौर से सुन लें। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहिंदी है, ओ तेरा है मकान। इस तरह से इसको गाना है। सेकंड हिस्से को गौर से तसल्ली से। जी सर, गलती ना करना।
ख़ास तौर पर हम कलीसिया के घराने के लिए और उन अजीज़ों के लिए जिन दिनों कमज़ोरी की हालत में है, खुदावंद अपना शाफी हाथ बढ़ाए और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अब सब लोग जो खुदावंद के घर में मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ईस्टर के सारे प्रोग्रामों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा ने हम सब की मदद की, रहनुमाई की और हम सब ने गर्मजोशी के साथ उन तमाम इबादत में हिस्सा लिया और खुदावंद से रूहानी ताज़गी पाई। मिसेस एस्टर किंग, आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें, शुक्रगुजारी करें आज के दिन के लिए और ख़ास तौर पर कलीसिया के उन बुज़ुर्गों के लिए जो कमज़ोरी की हालत में है। खुदा अपना शाफी हाथ बढ़ाए, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तेरी हम और तेरी तारीफ करते हैं। तेरी जमा हुए हैं तो खुदा हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ज़िंदगी बख्शी, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी ताकि हम तेरे घर में आए, तेरा शुक्र अदा करें, तेरी हमदो सना करें और खुदा तेरे सामने झुके और तुझे सिजदा करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। खुदा इस वक्त हम अपनी कलीसिया के उन तमाम बुजुर्गों को जो कमज़ोरी की हालत में है, खुदा उनको याद करते हैं और खुदा दुआ करते हैं कि बात तू उनको हिम्मत और ताकत आए खुदा बख्श दे, आए खुदा उनको मुकम्मल शिफा बख्श दे। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खून में कुदरत है। आए खुदा अपने उन बुजुर्गों के लिए तेरे पास लहू को आए खुदा मांगती हूँ इस ईमान के साथ कि खुदा तू अपने लोगों को न्याज गोर बख्शता है, नई कुव्वत बख्शता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं और आए खुदा दुआ करते हैं इबादत के शुरू से इबादत के आखिर तक खुदा तू हमारी रहनुमाई करना। गुजरे हफ्ता के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, उन सारे प्रोग्राम्स के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो बाखूबी है खुदा अपने अंजाम को पहुँचे। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरी यादगारी में वो दिन मनाए। आए खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा फिर से जी उठा, हमारा जिंदा खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। खुदा तू आज के पैगंबर के लिए ख्वार के लिए और खुदा बाकी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए और जो आने वाले हैं खुदा उन सब के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। सलामती से यहाँ पर आए और सलामती से वापस अपने अपने घरानों में वापस जाएं। ये सब कुछ मांगती हूँ मेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के ताक़त और जलील नाम की ताक़त से, आमीन। सैलकुट कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 131 131 मैं यीशु के नूर में सच चलूँगा।
खुदावंद के घर में नहीं है, मिस्टर स्टीफन जॉन के लिए, मिसेस एल्विनिस के लिए, नरगिस सैमुअल के लिए, भाई नईम बरकत के लिए, भाई अर्नस्ट के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, मिसेस मार्था के लिए, मिसेस रज़िया के लिए, दानिश के लिए और तमाम उन लोगों के लिए, शनाज के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं खुदा शाफियात बढ़ाने, सेहत तंदुरुस्ती दे। और जो लोग इस वक्त कमज़ोरी की हालत में हैं उनके लिए, और शुक्रगुजारी करें जो लोग ईस्टर के लिए बैरून मुल्क से आए वापस गए हैं, खुदा उन्हें सलामती के साथ उनके घरों तक पहुँचाएँ। उनके ख़ानदानों पर खुदा उनकी बरकत चाहते हैं। जितने लोग बैरून मुल्क हैं उन सब के लिए दुआएं खैर करते हैं। सेंट जॉन चर्च की कलीसिया एक फैमिली है, ख़ानदान है, पूरे घराने के लिए खुदा को शुक्र अदा करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि खुदा इन सबको सेहत तंदुरुस्ती दराज़ी उम्र अता फरमाए और आने वाले दिन इनके लिए बरकत का सबब ठहरे। चंद अल्फाज में कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है। करते हैं तेरे कदम भी ऊंचे, तेरे नाम को बुलंद कर, तेरे को बाकी कादर नहीं हो सकता कोई बात है। तू हमें किसी की गरीबी से प्यार करता है, तो प्यार का सागर है। अपने प्यार के सागर में बोले तू हमें पड़ता जाए, हम तेरे कामों को जो रात दो दिन की क्यों तकी करे, सारे बात के नाम करें। इस मौके के लिए, टाइम के लिए, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए टाइम से तेरे शुक्रगुजार है कि तू ये सुनासी इस पर मौजूद है। तेरा पाप तख्त इस पर इस घर में रख चुका है। जितने तेरे प्यार करने वाले तेरे घर में आ चुके हैं, इन सब को अपने पाप लोग से मसा कर, हिम्मत दे, ताकत दे, जल्दी से काम करें और तेरे नाम को जला दे। और ऐ सुनासी तेरी इसकी भी बहुत हम याद करते हैं। ऐ सुनासी कारण नहीं सच्चा समझ में आता है, सच्चे दिल से तौबा करें, हमें मान की खुशी दे ताकि मेरे पीछे चलने की तकलीफ दे। जितने लोग अस्पतालों या घरों में जा भी हैं, रास्ता बीमार है, उनके लिए फावला हाथ बढ़ा, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जल्दी जल्दी ठीक हो, अपने घर में जाएं, अपने घरों में जाएं और तेरे घर में आकर तेरे नाम को बुला देंगे। ऐ इतना की दुआ को बात है, दुआ के लिए, इस्लाम के लिए, हाथों की बात के लिए दुआ फैसला की करो। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों में खुशी में तब्दील कर दे, जो टेंशन है उनकी टेंशन को दूर कर, जो बेरोजगार है उनको रोक दे, अपनी रहमत, अपना कर्म, अपना फजल कर दे। ऐ इतना सब कुछ करने का है अपने खानों के लिए, रास्तों पूरी फैमिली के लिए, रास्तों जितने बीमार हैं उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए तो ऐसा तूने दे दिया बांध को तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा की मसीह के नाम। आमीन। आज सुबह हमारी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के 11 सफ़र नंबर 111 रसूलों के अमाल, चौथा बाब 32वें आयत से 35वें आयत। सारा तारक के पास ये हवाला है, रसूलों के अमाल चौथा बाब 32वें आयत से 35वें आयत। आज का दूसरा विरद, पहला यूहन्ना का ख़त, पहला बाब 5वें आयत से 10वीं आयत, सफ़र नंबर 235 235। मिसेस कलसूम सुहेल ये पैसेज पढ़ेंगी। सफ़र नंबर 235, पहला यूहन्ना का ख़त, पहला बाब 5वें से 10वीं आयत। इसके बाद हम एक कोर्स गाएंगे, गीत नंबर 349 349, हमद तेरी यहोवा गाते हैं हम सब। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 20वां बाब 19वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक, सफ़र नंबर 106। मिस्टर हारून आप इस पैसेज को हमारे लिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो क़ीदा है वो पादरी नेल्सन लीड करेंगे हमें। मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान 20वां बाब 19वें से 31वें आयत, हारून कमर हमारे लिए तिलावत करेंगे। फिर बताना चाह रहा हूँ जो लोग बाद में आए हैं ऊपर सुन लें। आवाज़ आ रही गैलरी में? थैंक यू। आज का पहला विरद रसूलों के अमाल
चौथा बाब 32वें से 35वें आयत। आज का दूसरा हवाला पहला यूहन्ना पहला बाब 5वें से 10वें आयत। आज का तीसरा हवाला है मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 19वें से 31वें आयत। मेरे हाथ में खुदावंद के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीज़ें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यस्सू के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग ज़मीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच कर बिकी हुई चीज़ों की कीमत लाते और रसूलों के पाँव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी ज़रूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से उसने सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीख़ी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीख़ी में चलें तो हम झूठे हैं और हक़ पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह कि वह नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यस्सू का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फ़रेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं, उसका कलाम हम में नहीं है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाज़े
جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھائے۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخش گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا، میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے ارتکار نہ ہو بلکہ ارتکار رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اور یسوع نے اور بہت سے معجزات شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھا گیا کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ شکر تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں، کتنے آج پھر ہم سب کو اکٹھا کیا تاکہ ہم ایک جان ایک روح ہو کر تیری ستائش، تیری تعظیم کر سکیں، تیرا کلام سن سکیں، اپنی شخصی، خاندانی، ازدواجی، کلیسیائی، قومی زندگی کو تیرے خوف میں رہ کر بسر کرتے ہوئے تجھ سے برکت پائیں، عقل، دانش اور فہم پائیں۔ آج کے کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کرتا ہے خداوند تو ہم سب کے لیے اپنے پاک روح کی رہنمائی دے تاکہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ کر اس سماج میں رہتے ہوئے دوسروں کے لیے نجات کا سبب ٹھہریں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے جماعت بیٹھ جائیں۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پورے لینٹ سیزن میں جتنی عبادات تھی، جتنے پروگرامز تھے، آپ نے ان میں شرکت کی۔ بہت سارے لوگ دور دور سے بھی آتے تھے، خاص طور پہ بھائی نظر کا خاندان، وہ تقریباً یہاں سے کافی دور ہیں، حمزہ ٹاؤن سے لوگ ہیں، شہر کے باقی حصوں سے جو آتے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر آپ کی محبت کے لیے، پیار کے لیے، آپ کے ہدیوں کے لیے، آپ کے نذرانوں کے لیے، آپ کے تحفے تحائف کے لیے جو آپ خوشی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں بلکہ خداوند کے گھر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور لوگ جو عبادات میں شامل ہوتے ہیں، خاص طور پر بچے، نوجوان، میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے کی نسبت اب دلچسپیاں کم ہو گئی ہیں، فرق دلچسپیاں ہو گئی ہیں۔ آپ ضرور چرچ کے کاموں میں، چرچ کی خدمت میں ضرور حصہ لیا کریں۔ جب میں لاہور میں آیا، مجھے 38 ایئرز ہو گئے ہیں، تقریباً 38 سال، 25 سالوں میں ایک نئی نسل پروان چڑھ جاتی ہے۔ تو میں جب آیا تو میں نے کبھی کوئی بھی پروگرام چھوڑا ہی نہیں تھا۔ جہاں مجھے موقع ملتا تھا
जहाँ सेमिनार होता था, जहाँ कोई इबादत होती थी, मैं वहाँ चला जाता था। मैंने बहुत सीखा, लोगों से सीखा है। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि ये दुनिया बहुत बड़ी किताब है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये ज़माना बहुत बड़ा उस्ताद है आपका। वो बातें जो आप घर से नहीं सीखते, कॉलेज से नहीं सीखते, यूनिवर्सिटी से नहीं सीखते, इस ज़माने ने मुझे और आपको सिखाई हैं। इसलिए मैं वालिदैन से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बच्चों को इनकरेज किया करें, ताकि बच्चे खुदावंद की खिदमत की चीज़ों को जो अहम है समझ सकें। मैं कई दफ़ा टेलीविज़न पे देखता हूँ, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे अपने बच्चे बच्चियाँ किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई उनसे सवाल कर लेता है ईस्टर के बारे में, क्रिसमस के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बारे में, रोज़े के तल्लक से उन्हें सही जवाब देना नहीं आता। पढ़ाई तो बड़ी कर ली उन्होंने, तालीम तो बड़ी हासिल कर ली उन्होंने, नाम भी हो गया, लेकिन जो मसीही तालीम है उससे वो सही तरह से ना वाकिफ़ है, वाकिफ़ नहीं है। इसलिए ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि इन्हें ऐसे प्रोग्रामों में भी भेजें ताकि जाएं और सीखें। इनको आज़ादी दे कुछ नहीं होता। कलाम मुक़द्दस में जो आज का हवाला पहला पढ़ा गया है, अब वो निकालें ज़रा, फिर आपने अपने आप को उसमें से देखना है। मैं जब इन चीज़ों को पढ़ता हूँ, मैं अपने आप को सबसे पहले देखता हूँ इनमें। जो हवाला हारून ने पढ़ा, ये तारीख़ी हवाला है, हर साल आप सुनते हैं, हर साल आप लोग खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद कि वो ख़बर भी सुनते हैं कि उस वक़्त उसके जो शागिर्द थे वो खौफज़दा थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कमरे में बंद थे। तो खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद उनके दरमियान आ गया, तो वो हैरान भी हुए। हालांकि हर वक्त साथ साथ रहते थे, सारी बातों से वाकिफ़ थे, लेकिन इंसान होते हुए वो मेरी और आपकी तरह कमज़ोर थे। इसलिए रसूलों के अमाल में पहले हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब कलीसिया कायम हो गई, तो फिर 32वीं आयत में लिखा है, चौथा बाब पढ़ रहा हूँ, जो हवाला पढ़ा गया आपके लिए। आप ज़रूर नोट किया करें कि जितने गीत भी हमने गाए हैं वो हमारे इन हवालों के साथ, कलाम के इन हिस्सों के साथ मिलते हैं, ताकि हम इन चीज़ों को सही तरीके से समझ सकें। अब आप लोग जो सेंट जॉन चर्च की कलीसिया यहाँ पे बैठी हैं, आप ईमानदारों की जमायत हैं। क्यों आप ईमानदारों की जमायत है? इसलिए कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को बग़ैर देखे कबूल किया हुआ है। ब्लाइंड फेथ है आपका, बग़ैर देखे ईमान लाए हैं आप। और ये भी मैं पढ़ूंगा, ईमान कलाम में लिखा हुआ है आज के हवालों में, ठीक है? तो गौर से देखें ज़रा 32वीं आयत। और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी। क्या मैं और आप ये दावा कर सकते हैं कि मैं और आप, हम सब, ये क्वायर के लोग, आप लोग, गैलरी वाले, हम सब एक जान होकर उसकी तारीफ़ करते हैं, एक जान होकर उसकी मददसराई करते हैं? वाकई हम एक जान हैं? क्या हमारी सोचें एक जैसी हैं? क्या हमारे रवैये एक दूसरे के साथ एक जैसे हैं? अगर मैं और आप ईमानदार जमायत का हिस्सा हैं, कलाम की बात कर रहा हूँ, रसूलों के अमाल की बात कर रहा हूँ, फिर मैं अपने अमाल सामने रखना हूँ कि हमारे अमाल क्या हैं। और ईमानदारों की जमायत एक दिल, एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीज़ें मुश्तरक थीं। क्या थी? मुश्तरक का मतलब मुश्तरका थी। इस चर्च की हर एक चीज़, जो चीज़ भी आपको यहाँ नज़र आती है, आपने दी हुई है, ये मुश्तरका चीज़ें आपकी। अब जिसने दिया वो ये नहीं कह सकते जो अब ये मेरी है, मैंने दी हुई है। जब यहाँ आ गई है तो वो किसकी है?
مشترکہ ہے، ہم سب کی ہے، ہمارا اس پہ رائٹ ہے، ہمارا اس کا حق ہے اس پہ. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ میرا حق ہے سینٹ جانس چرچ کی ایک ایک چیز پر، تو پھر آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، رسپانسبلٹیز بھی ہیں. جب آپ ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز جو یہاں پڑی ہے میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس کا ہے، کیونکہ آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. سو آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. ہم سب جتنے لوگ یہاں پہ ہیں، جس ذمہ داری میری اور آپ کی ہے ہم نے پوری کرنی ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹ جانس چرچ کی جماعت ایک دل اور ایک جان ہے. مال جو کچھ بھی ہے اس کو بھی مشترک سمجھیں، اکٹھا سمجھیں. اور رسول جو رسالت کا کام کرتے تھے، جنہوں نے نجات کا پیغام دیا، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع مسیح کے جھوٹنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا. جس شخص پر خدا کا فضل ہونا اس سے آپ نے حسد نہیں کرنا. ٹھیک ہے کہ میں تو اتنی محنت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، پھر بھی یہ کام میرے نہیں ہے، لیکن اس شخص کے پاس یہ ساری چیزیں کیسے آ گئی ہیں؟ انہیں بے ایمانی تو نہیں کی تھی، اس نے ڈاکہ تو نہیں ڈالا. نو، نہ سوچیں یہ بات. جس پر فضل ہوتا ہے، آپ میں سے ہر ایک شخص پر خدا کا فضل ہے، لیکن اس فضل کے وسیلے سے آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے، آپ اس سماج میں رہتے ہوئے، آپ اس کلیسیا میں رہتے ہوئے کیا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ دوسروں کی فکر کرتے ہیں یا اپنی فکر کرتے ہیں؟ اگر آپ صرف اپنی ہی فکر کرتے ہیں پھر آپ خود غرض ہیں، پھر آپ ایک دل ایک جان نہیں ہیں. پھر آپ پہ جو فضل ہوا ہے اور اس شخص پہ جو فضل ہوا ہے، اگر اس کے پاس زیادہ برکتیں ہیں اور آپ کے پاس کم ہے، تو پھر آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وجہ ہے، اس پہ خدا کا فضل زیادہ کیوں ہے؟ بھائی سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میں خود غرض ہوں، اپنا سوچتا ہوں، اور وہ شخص دوسروں کا سوچتا ہے. اس سال کا ایسٹر کا جس سیزن ہے، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ آپ غور سے اپنے سن کے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے. پھر آپ ایک جان ایک روح ہیں، پھر آپ ایمانداروں کا حصہ ہیں، پھر آپ پر خدا کا فضل ہوا ہے، اور جن پر خدا کا فضل ہوا انہوں نے رسالت کے کام کو، نجات کے پیغام کو، خوشخبری کے پیغام کو خوشی کے ساتھ دوسروں تک پہنچایا. خطرات میں سے بھی گزر گئے، خطرہ بھی مول لے لیا. میں اور آپ خطرہ مول نہیں لیتے، ہم آسان کام ڈھونڈتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی آسان کام ڈھونڈتے ہیں، جس میں مشکل نہ ہو، جس میں پریشانی نہ ہو، جس میں محنت نہ کرنی پڑے. سو میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ محنت کریں، شوق کے ساتھ کام کریں، دل لگا کر کام کریں، تو خدا کا فضل آپ پہ ہوگا. آپ کو برکتیں ملیں گی، آپ کی مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. اس لیے رسولوں کے اعمال جب ہم پڑھتے ہیں، ایک تو وہ ایک جان تھے، ایک دل ہو کر کام کرتے تھے، دوسرا بڑی قدرت ان کے پاس یہ تھی کہ خدا کا فضل ان پہ تھا، اور وہ جھوٹنے کی گواہی دلیری کے ساتھ دیتے تھے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی محتاج نہ تھا. میں اور آپ ہمیشہ محتاج ہی رہتے ہیں، ہمارا ملک ہی محتاج رہتا ہے. کیا فضل نہیں ہے ہمارے ملک میں؟ بڑا فضل ہے. جو نعمتیں ہمارے ملک میں ہیں، پہاڑ، زرعی زمین، ہر قسم کی چیز، یہ سونا ہے ہمارا ملک، اس میں سب کچھ ہے. لیکن اس کی جو ترتیب ہے، جو اس کی تقسیم ہے، وہ صحیح نہیں ہے. جس کے ہاتھ زیادہ آ گیا اس نے زیادہ پکڑ لیا، وہ مالک بن گیا، وہ چودھری بن گیا. جس کے ہاتھ ہی نہیں لگا بیچارہ، وہ سوچتے رہ گیا. اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے، جب میں اور آپ ایک جان ایک روح ہو کر، یک دل ہو کر کام کریں گے تو پھر کوئی بھی ہم میں سے محتاج نہیں رہے گا. ہم ایک دوسرے کو محتاج بنانا چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بڑی بات ہو. رسولوں نے یہ نہیں سوچا، خدا کے خادموں نے یہ نہیں سوچا،
जो यीशु के साथ साथ रहते थे उनमें से कोई भी मोहताज नहीं था। इसलिए जो लोग ज़मीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच कर बिकी हुई चीज़ों की कीमत लाते थे और रसूलों के पाँव में रख देते थे, फिर हर एक उसकी ज़रूरत के मुताबिक बांट दिया जाता था। हमारा मुल्क अगर ऐसे करे ना, बांटे लोगों में चीज़ें, ये नहीं कि जो अजीज़ है, जो रिश्तेदार है, जो करीबी है उसको दे दिया और दूसरे को छोड़ दिया, बराबर का बांट दें, ये मुल्क तरक्की करेगा। जब मैं और आप ऐसा नहीं करते तो फिर लोग परेशानी का शिकार हो जाते हैं। जब वो बांट दिया करते थे हर शख्स की ज़रूरत पूरी होती थी। हमारे यहाँ हमारे अदारों में ऐसा है, मसीही इदारों में ऐसा है। गौर से सुने मेरी बात, जो मेहनत कर रहे होते हैं लोग वहाँ पे उस अदारे में पहले से वफादारी के साथ, जब नए आते हैं, ऊपर से आते हैं, पैराशूट के ज़रिए आ जाते हैं यकदम, उनकी ज़्यादा कदर हो जाती है, उनको ज़्यादा मराआत मिल जाती हैं और दूसरे पीछे रह जाते हैं। हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ। जब तकसीम ठीक नहीं होगी, जब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो फिर खा मुल्क हो, अदारा हो, चर्च हो, कोई भी ऐसी जगह हो, फिर वहाँ खुदा का फजल नहीं होगा। इन पर खुदा का फजल था, उन्हें खुदा और देता था, वो देते थे और खुदा दे देता था, खुशी से देते थे, लाचारी से नहीं देते थे। और खुदा के कलाम में लिखा है, मैं 36वीं आयत इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, ये नसीहत है यहाँ पे। और यूसुफ नामी एक लावी था जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था। लक़ब का मतलब है, आता है किसी को लक़ब? ये हम पादरी हिस्कियल के गीत गाते हैं ना जो लिखे होते हैं, तो पादरी हिस्कियल का सही नाम हिस्कियल है, ठीक है। आगे जो सरोश लफ्ज़ है वो उनका लक़ब है, इसलिए कि वो शायर थे, उन्होंने ये नाम लिया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, यूसुफ नामी एक लावी था वो लावी, खुदा की खिदमत करने वाला, उसका लक़ब था कि रसूलों ने बरनबास रखा था उसका लक़ब, यानी नसीहत का बेटा रखा, जिसकी पैदाइश कुप्रस में हुई, साइप्रस में हुई, जहाँ पौलुस रसूल ने खिदमत की, जहाँ उसका जहाज़ भी गर्क होने लगा, जहाँ उसमें मुश्किलात भी आईं, पौलुस रसूल को कोड़े भी लगे, वो पिलर अब भी वहाँ पे मौजूद है जिसके साथ बांध कर कोड़े लगाए गए। लेकिन कुदरत ये थी, अख्तियार ये था, उन पर खुदा का फजल था। वो दरिया में, वो समुंदर में, वो ये जगह है ही समुंदर के अंदर, ये जजीरा है कुप्रस, ये समुंदर के दरमियान में है। जब आप वहाँ जाते हैं, उतरते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आपका जहाज पहाड़ी में गिरने लगा है, लेकिन वहाँ पे पहाड़ भी है, एयरपोर्ट भी है, अंगूरस्तान, अंगूरों के बाग, और लोग खूबसूरत एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। घरों की दीवारें नहीं हैं, उनकी चीज़ें, कीमती चीज़ें बाहर बरामदों में लगी हुई हैं, कोई उठाता नहीं है, क्योंकि वो किसी, उनमें से कोई एक दूसरे का मोहताज। मैंने और शकीला ने, हमने अपनी आंखों से देखी हैं वो चीज़ें, इसलिए कह रहा हूँ। दीवारें नहीं है वहाँ पे, ताले नहीं है वहाँ पे, इसलिए कि जब मेरे घर में सब कुछ होगा तो मैं वहाँ से क्यों चुराऊँगा। इसलिए खुदा के कलाम में यहाँ पे लिखा है, ये शख्स जो लावी था, खिदमत गुजार था, उसका लक़ब बरनबास, नसीहत का बेटा, जिसकी पैदाइश कुप्रस में हुई, उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पाँव में। बरनबास को सारी ज़िंदगी किसी चीज़ की फिक्र नहीं रही, उसके पास बहुत कुछ था, यहाँ तक कि उस जगह पर जहाँ उसकी पैदाइश हुई है, आज भी लोग वो कहते हैं, रवायत है कि ये चर्च फरिश्तों ने बनाया। जो बरनबास का चर्च है वो किसने बनाया? इतनी बरकत क्यों?
जो कुछ उसका था उसने बेच कर भी रसूलों के पाँव के आगे ला के रख दिया था। तो फिर खुदा का फजल हुआ कि ना उस पर। आज भी उसका नाम हम ले रहे हैं, है भी नहीं है अब दुनिया में, लेकिन उसके काम, उसके इमाल जिसने किए, अमली काम, वो याद रखे जाते हैं। आप में से हर एक के, मेरे बाद भी अगर कोई मेरी किसी चीज़ को याद रखता है तो इसका मतलब वो मेरा इमाल है, मेरा अमल है। आपके बाद या हमारे बुज़ुर्गों के बाद जब हम उनका नाम लेते हैं, उनके कामों पर जिक्र करते हैं, उनकी मेहनत का जिक्र करते हैं, उनके खुलूस का काम जो खुलूस के साथ उन्होंने किए करते हैं। आज भी मैं मिशनरियों को याद करता हूँ कि उनकी वजह से हम लोग पढ़ गए हैं। हमें याद रखना है। क्या मेरे और आपके इमाल हैं इस दुनिया में कि लोग हमारे कूच कर जाने के बाद लोग उन बातों को याद रखें? कोई ऐसे काम किए हमने तो फिर तो ठीक है। अब इसके बारे में मुक़द्दस यूहन्ना क्या कहता है, अब ये भी मैं आपको बता दूं। ये यूहन्ना का जो पहला ख़त है आम, यूहन्ना का जो दूसरा आम ख़त है, फिर तीसरा आम ख़त है। ये वही यूहन्ना है जिसने पाक रूह की हिदायत के मुताबिक यूहन्ना की इंजील, जिसको हम कहते हैं, वो लिखी है। इसलिए हमने कहा मैं यीशु के नूर में साथ चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा, नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, क्योंकि यीशु जो है वो मेरा मुनजी मसलूब है। और वो कहता कि 5वीं आयत जो पढ़ी गई, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं है। अगर आपका ईमान भरोसा तवक्कुल खुदा पर है तो वो तो है ही नूर। तो जब नूर पे भरोसा है तो फिर तो आप नूर में चलेंगे ना। और अगर मैं और आप फिर भी तारीकी में रहे, हमारे काम तारीकी का काम हो, हसद हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, ग़ीबत हो, ऐसी सारी बातें जो मैं और आप करें, फिर तो हम अंधेरे में ही हैं ना अभी तक। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर नहीं हैं। ये अमल है हमारा। फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। ये है तारीकी से निकलकर नूर में आ जाना। और खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का मकसद ही ये है। अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो फिर मैं और आप अगर तरीके में है तो फिर उसका सलीब पर दिया जाना, मुर्दों में से जी उठना मेरे लिए और आपके लिए अबस है, बेकार है। अगर आप अभी तक तारीकी में हैं, नूर में आ जाएं, तारीकी के कामों को छोड़ें। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फ़रेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं है। आप में से कोई कह सकता है कि वो गुनहगार नहीं है? मैं तो हूँ, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। एक भी, मैं और आप हम में से एक भी इसके मुताबिक नहीं है। इसीलिए यीशु आया और इसलिए इसके खून के वसीले से मैंने अपने आज़ादी, रिहाई और छुटकारा हासिल किया। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है फ़रेब दे रहे हैं अपने आप को भी, दूसरे को भी, और सच्चाई हम में नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमारी सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर इकरार करें, इकरार, इजहार, एतराफ़, अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में है ही नहीं है। तो आप तो हर संडे कलाम सुनते हैं, घर में भी पढ़ते हैं। आए मेहमान, आप इस पे यकीन करें, भरोसा रखें। जिस तरह तोमा रसूल उस कमरे में नहीं था, यीशु आ गया, लोग दूसरे शागिर्द तो हैरान हो गए। उन्होंने उसको कहा कि हमने यीशु को देखा। उसने कहा नहीं, जब तक मैं उसके उन सराखों में जहाँ कील ठोंके गए थे हाथ न डाल लूँ, उंगलियाँ न डाल लूँ, मैं यकीन नहीं करूँगा। और जब 8 दिन हो गए तो फिर यीशु आ गया, तुम्हारी सलामती हो। तो यीशु ने आकर कहा, देखो भाई ये मेरे हाथ जहाँ कील लगे थे।
पसली जहाँ नेज़ा लगा था। तो यीशु मसीह ने तोमा को कुछ नहीं कहा, लेकिन तोमा ने क्या कह दिया, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा, तू सब कुछ है, मैंने यकीन कर लिया। तो यीशु ने उसने कहा, देख तोमा, तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो बग़ैर देखे ईमान लाए हैं। सेंट जॉन चर्च के लोगों, आप सब लोग मुबारक लोग हैं, आप बग़ैर देखे ईमान लाए हैं। तोमा रसूल ने उसको देखा, फिर ईमान लाया, और फिर खुदा ने उसे भेजा भी कहाँ पे, हमारे इस पाकिस्तान के इलाके में टेक्सला में भेजा। वहाँ उसने खिदमत की, निजात का पैगाम दिया, खुशखबरी का पैगाम दिया, इंजील का पैगाम दिया, और उस पर खुदा का फजल था। मेरी ये दुआ है कि आप सब पर खुदा का फजल हो और आप निजात का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, सलीब का पैगाम अपने अमल से दें, अपने रवैये से दें, अपने किरदार से दें, ताकि लोग जानें कि मैं और आप मसीही हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आए हम दुआ मांगे, खुदावंद का शुक्र अदा करें इस कलाम के लिए। तारीकी में से निकलें, नूर में आ जाएं, क्योंकि यीशु मसीह का सलीब पर दिया जाना और मुर्दों में से जी उठना मेरे लिए और आपके लिए मजबूत चट्टान है, जो मेरा और आपका ईमान है। कोई भी दुआ कर सकता है। ज़बूर 139 Yeah.
हम बड़ी खुशी के साथ अपने लिए नजराने शुक्रगुजारियाँ तेरे ज़रूर गुजार सकें। तो अपना हाथ बढ़ा इस नदी की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, इन सब के मसाइल में वुसअत दे, इन सब की रोटी पानी को बरकत डाल। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा कि तू हमें अपने फजल के वसीले से बरकत और नेमतें अता करता है जो तो अपने ईमानदार लोगों के लिए रखता है। इस सदी में तेरे लोगों की दरख्वास्तें हैं, मन्नतें हैं, शुक्रगुजारियाँ हैं, बड़ी आजिज़ी की सारी हलीमी से इससे मिन्नत करते हैं। तो हम सबको भी अपने ज़ुर कबूल फरमा रहे, नदियों को भी अपने ज़ुर कबूल फरमा रहे, क्योंकि तेरे दिए में से ही हम तुझे वापस लौटाते हैं। आने वाले वक्त में तो अपने लोगों को ढेरों खुशियाँ दे। इस सदी की तकदीस कर, दुआ खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। आइए सो अपने रुल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैह की भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो एक में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, आपके रूह के साथ भी रहे। अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायवंड के लिए, बिशप ऑफ रायवंड के लिए, तमाम मसीहदारों के लिए, सेंट जॉन चर्च की कलीसिया के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 सब बोले। आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममनून है। ऐ खुदावंद ताला तेरा जलाल मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आने वाला पर होशाना। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तो आया आसमानी बाप, तो जिसने अपने इस बड़ी शफ़क़त से जन कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, जंग ज़दा इलाकों पर और मिसेस यूनुस पर रहम कर, हम सब पर रहम कर और आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिरना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे झूठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं
اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ لدہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اپنا اطمینان۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے خداوند سے اطمینان مانگے اور ایک دوسرے کو کہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، کیونکہ آج کی دنیا، ساری دنیا اطمینان کی تلاش میں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا خداوند ہمیں اطمینان بخشتا ہے، اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خداوند سے اطمینان مانگے اور کہیں خداوند آپ سب کو اطمینان عطا فرمائے۔ اور جب ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے اس وقت آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، ترتیب کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں، روحانی تازگی پائیں، تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ ترتیب کے ساتھ آئیں اور پھر جا کر
तो शहरबानी में ठीक होना चाहते हैं, मौका है। अगर आप यहाँ ना आ सकते तो हाथ दिखाएं ताकि आप किसी वक्त भी आपके पास आ सकते। शुक्रगुजारी करें। कादिर मुझे खुदा हमारे आसमानी बाप जिसने हमें अपने सभी बेटे यीशु हमारे खुदावंद ने बतौर अपना वरदान कबूल कर लिया है और हमें उसे नहायत बेशकीमत बदल और खून की पानी से किया है और हमें गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शों के लिए जो प्यार से लाए हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म में तेरे हजूर नजर गुजारते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें बदल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अगर नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और काबुल वर्दी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब तक में खुशी बनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह के साथ वाहिद खुदा अब्दुल वाहिद का और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तौहीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल वाहिद वाले खुदा को। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और इसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ और हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदारों बहन भाइयों बच्चों बुज़ुर्गों दोस्तों हमसायों खुदा के खादमों के साथ जगज़दा इलाके के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए।